हे गाइस, आई एम पारुल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का कंटेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंटेंट विच आई पोस्ट ऑन माय चैनल। आज की वीडियो इज़ रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हाउ यू कैन study and revise financial reporting in a better way and how you can score good marks in FR. वीडियो थोड़ी लंबी बनी है गाइस, बट इट्स बिकॉज आई हैव ट्राइड टू कंपाइल एवरीथिंग जितना भी मैं सोच पा रही थी अबाउट FR, लाइक बीट स्टडी टिप्स, एग्ज़ाम टिप्स, मटीरियल इन वन वीडियोज़, ताकि आप लोगों को और वीडियोज़ रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े. So I've divided this video in 4 parts. Part 1 is regarding the tips, study related tips, the tips which you could incorporate in your studies during your preparation stage for better results. Part 2 is exam related tips, the tips which all of us should remember and follow during our exams and the day before our exams. Part 3 is regarding the material which I referred for old course and the material for new course, and part 4 is basically a glimpse of my revision note. In case you don't want to watch the whole video or you want to watch a specific part of the video, I'll provide the video start time of each part in the description box below. You can directly jump onto that and watch that. In case you want me to make more videos like this, do comment in the comment box below, and if you like the video, give it a thumbs up, share it with your friends, and do subscribe to my channel. So without wasting much time, let's get started. First, the first part of the video is about some study tips for financial reporting. See, financial reporting is a very easy subject in CA final, and if you follow these tips, it would be very easy for you to score exemption in FR. And by following these tips, your revision notes would get prepared during the preparation stage only. So, without wasting much of your time, let's get started. The first step from my side would be make concept notebook. It's very important that you make a separate concept notebook. Practical is important guys, but उससे भी ज़्यादा important conceptual clarity है and concepts है. अगर आपको concepts ही नहीं पता तो आप क्या practical solve करोगे? And in some chapters अगर आपको ने practical solve करके नहीं देखा but you're aware of the concepts, तो आप कुछ हद तक पेपर में क्वेश्चन बना पाओगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अलग से कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाओ ताकि आप बार बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सको एंड आपकी कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ बन सके. अगर एक ही नोटबुक में कॉन्सेप्ट भी होगा एंड प्रैक्टिकल भी होगा तो रिवाइज करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा. और सच बताऊं तो बा, बार बार पन्ने पलटने का मन भी नहीं करता 2 पेज की थ्योरी के लिए. तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कोचिंग लेते समय ही 2 नोटबुक बना, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. अगर if you're someone who hasn't started his FR coaching, or if you're someone who has just started his FR coaching, तो आप स्टार्टिंग से ही 2 नोटबुक बना के चलो, थियोरी एंड प्रैक्टिकल. But if you're someone who has finished his FR की coaching or is in the middle of his coaching या फिर is about to finish his coaching, तो दोबारा बनाना तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है. प्लस सी स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता. तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने फर्स्ट पेज पे रजिस्टर के इंडेक्स बना लो जिसमें आप मेंशन कर दो कि इस पेज से इस पेज के बीच में जो आपकी थ्योरी है. इससे आपके लिए थ्योरी रिवाइज करना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा. और यू कैन डू वन मोर थिंग, जस्ट पुट अप अ फ्लैग जहाँ पे भी आपकी थ्योरी है, और उन फ्लैग्स की वजह से इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट, और बार बार आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पाओगे. So the tip number 2 from my side is solving all questions at least once. आपके प्रैक्टिस मैनुअल में, आपके कोचिंग मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सॉल्व इट एटलीस्ट वंस. कोचिंग के अलावा एक सेपरेट नोटबुक में एक बार लिख कर सॉल्व करो एंड ट्राई करो ट्राई करो कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, इवन बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व करो. और मेक इट अ पॉइंट कि जब तक आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना कर लो, डोंट रेफर द सोल्यूशन. ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा सा क्वेश्चन किया एंड यू आर सीइंग द सोल्यूशन. पूरा क्वेश्चन ट्राई करने का या पूरा क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट करो, और जब बिल्कुल ही ना हो तब आंसर पे जाओ. इससे आपको पता चलेगा
कि आपका कहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक है, कहाँ पे कम अंडरस्टैंडिंग है, या फिर कहाँ पे यू नीड इम्प्रूवमेंट. So the tip number three from my side is star mark important question. This I think is the most important tip. I got to know about this tip during my IPCC when I took classes from uh, Ashish Kalra sir, and I have used this tip almost in every paper of my IPCC and CA final. So आप जब भी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे एक बार में हो जाता है, यू डोंट नीड टू डू इट अगेन इन योर सेकंड रिवीजन. जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया एंड आप पूरा सॉल्व करने के बाद आप एक एडजस्टमेंट में अटके हो, या फिर एक एडजस्टमेंट की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो यू कैन पुट अप अ सिंगल स्टार ओवर देयर, और यू कैन हाईलाइट दैट एडजस्टमेंट. तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी रिविजन करो, यू कैन ओनली सी दैट एडजस्टमेंट. एंड इन केस ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है, जिसको सॉल्व किया तो यू रियलाइज की 10 में से 8 ट्रीटमेंट्स आपके गलत है, तो उन क्वेश्चंस में यू कैन पुट अ डबल स्टार कि ये क्वेश्चंस तो आपको पूरे ही लिख कर करने हैं. मतलब यू डोंट नीड टू डू ओनली एडजस्टमेंट, ये आपको पूरा लिख कर करना है. I'll show you my revision notes in the later part of the video, and trust me guys, सिर्फ इसी टिप के सिर्फ इसी टिप के साथ I was able to revise my FR का syllabus 4-5 times, and I was able to get 75 marks in FR because of this tip only. Now moving on to my last tip. My last tip is cover your PM and SM completely. We all know कि हमारे FR का पेपर मोस्टली पीएम से ही आता है. ऑल्दो हमारे कोचिंग मटेरियल में पीएम के क्वेश्चंस कवर होते हैं, बट आई वुड स्टिल एडवाइज यू कि आप एक बार फिर से गो थ्रू करें पीएम को और एसएम को. इससे क्या होगा, इट वुड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एंड आपको लगेगा कि आपने पूरी पीएम एंड एसएम कंप्लीट कर दी है. एंड इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके कोचिंग मटेरियल में नहीं है, आपको नहीं आता, और पीएम और एसएम में, यू कैन राइट दैट क्वेश्चन इन योर कोचिंग मटेरियल, और जब भी आप रिवीजन करो यू कुड रेफर दैट क्वेश्चन. और इससे एक बेनिफिट एक और होगा कि अगर आप ये नहीं करते हो रिवाइज इस तरीके से, पीएम और एसएम को नहीं उससे गो थ्रू नहीं करते हो, तो आपको लास्ट टाइम तक यही लगता रहेगा कि यार कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना गया हो या कुछ मिस ना हो गया हो. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि एक बार तो आप गो थ्रू करो पीएम और एसएम को. ऑल्सो ट्राई टू फॉलो द मेथड एंड द assumptions ऑफ आईसीआई ओनली. हो सकता है कि आपके सर ने या आपके कोचिंग टीचर ने आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट कराया और डिफरेंट assumptions लेके या डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कराया हो, जो कि शायद एक बेटर मेथड हो, या फिर एक मोर मतलब एक आई वुड से बेटर मेथड हो, या फिर बेटर assumption हो. बट स्टिल आई वुड एडवाइज यू कि आप आईसीआई का ही assumption या मेथड फॉलो करो, क्योंकि पास आईसीआई ही करेगा, नॉट आवर टीचर. तो जो assumption या जो मेथड हमारे आईसीआई के पीएम में है या आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है, गो विद दैट. आई हैव सीन कि जिन लोगों ने डिफरेंट मेथड्स यूज किए हैं, उनको काफी कम स्कोर मिलते हैं इन कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट्स जो आईसीआई के मेथड या assumptions को फॉलो करते हैं. तो डू फॉलो आईसीआई के मेथड एंड assumptions. पढ़ाई तो ढंग से कर ली गाइस, बट हम एग्जाम के डेज पे भी कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा पेपर का पूरा टेम्परमेंट खराब हो सकता है. दिस इज द रीजन आई हैव इंक्लूडेड दिस वीडियो ओवर हियर, बिकॉज ये टिप्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. These tips are very basic, and I guess almost each and every one of you must be aware of it. But हम एग्जाम के स्ट्रेस में और टेंशन में इनके बारे में भूल जाते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें माइट स्पॉइल आवर पेपर. तो चलिए देखते हैं व्हाट आर दोस टिप्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर before going for your exams and during your exams. So the tip number one from my side would be time management. So in a 3-hour paper, we need to do 6 questions, out of which 5 are of 16 marks and 1 is of 20 marks. So we can maximum devote around 25 to 30 minutes for a 16-mark question.
अगर एक क्वेश्चन में हम 1 घंटा लगा देंगे, तो वी वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट आवर पेपर एंड नो मैटर हाउ डिफिकल्ट और ईज़ी अ क्वेश्चन इज़, इट वुड इट विल ओनली फेच यू 16 मार्क्स। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर आपने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आपको एग्ज़ामिनर सी में पास कर देगा या फिर 16 में से 30 नंबर दे देगा, और या फिर कोई ईज़ी क्वेश्चन 16 मार्क का सॉल्व किया तो उसमें वो आपको 10 नंबर देगा बिकॉज़ वो ईज़ी है। तो मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चंस को करो एंड इन सीए अगर आपको 60 लाने हैं या फिर 70 लाने हैं या इवन 90 लाने हैं, तो यू नीड टू अटेम्प्ट पूरा 100 मार्क का पेपर। व्हाट यू कैन डू इज व्हेन you cross that 25 or 30 minute ka mark, you should immediately stop doing that question and move on to the next question. You can leave 1 or 2 pages and can come back if time permits you to do so. Second tip from my side would be carry your own watch, calculator and stationery. I could have included watch and calculator in the stationery only, but ये इतनी ज़्यादा important है इसलिए मैंने सोचा इसको अलग से कवर करते हैं। तो इज वॉच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना तो आप टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते हो। आई हैव सीन पीपल मेरे एग्जाम्स के अंदर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर घड़ी पहनना भूल जाते हैं एंड दे कीप ऑन आस्किंग एग्जामिनर कि कितना टाइम हुआ है, और आप कितनी बार पूछोगे यार, बाकी लोग भी इरिटेट होते हैं और एग्जामिनर्स भी इरिटेट हो जाते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना खुद की वॉच कैरी करो। कैलकुलेटर कैलकुलेटर एक ही कैलकुलेटर पे हमारा हाथ सेट होता है, अगर हमें दूसरा कैलकुलेटर यूज करेंगे ना एग्जाम्स के अंदर, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड काफी स्लो हो जाएगी बिकॉज हम जल्दी कैलकुलेशंस कर ही नहीं पाएंगे कैलकुलेटर पे। तो कैरी योर ओन कैलकुलेटर, मेक इट अ पॉइंट कि आप कैलकुलेटर अपने बैग में रख रहे हो। एंड स्टेशनरी कैन इंक्लूड एनीथिंग, यू नो, इट कैन इंक्लूड योर पेन पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, और इवन रोल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अ सेपरेट बैग जिसमें आप अपनी पूरी किट बना के रखो, जिसमें आप अपनी वॉच भी रखो, कैलकुलेटर भी रखो, स्टेशनरी भी रखो और रोल नंबर भी रखो। एंड घर पर आकर उन चीजों को बाहर मत निकालो। इससे आप भूलोगे नहीं। बहुत बार क्या होता है, पेपर के सुबह सुबह इतना स्ट्रेस होता है कि हम वॉच पहनना भूल जाते हैं या कैलकुलेटर घर पे भूल जाते हैं, या बहुत बार रोल नंबर भी घर पे छोड़ आते हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अलग से बैग मेंटेन करके रखो और इन चीजों को बाहर निकालो ही मत, ताकि भूलने का कोई स्कोप ही ना हो। द थर्ड पॉइंट इज यूटिलाइज दैट 15 मिनट्स प्रॉपर्ली। तो हमें 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उस 15 मिनट की रीडिंग टाइम में आप डिसाइड कर लो कि किस सीक्वेंस में आप क्वेश्चन करने वाले हो। आप क्वेश्चन पेपर पे लिख लो, मार्क कर लो कि इस सीक्वेंस में आप ये क्वेश्चन करोगे, 1 2 3 करके आप मार्क कर लो जिस सीक्वेंस में आप क्वेश्चन करोगे। ट्राई करो कि आप अपने बेस्ट जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता है उससे स्टार्ट करो, बिकॉज बेस्ट क्वेश्चन अगर आपने अपने कर लिए स्टार्टिंग में तो आपके कुछ नंबर सिक्योर हो जाते हैं। प्लस जो क्वेश्चन हमें ढंग से आते हैं, हमें उसमें शायद 25 से 30 मिनट ना लगे, हम उसे 20 मिनट में सॉल्व कर दें, और वो टाइम हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस में या फिर वो क्वेश्चंस जो हमें नहीं आते उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि पीएम, हमें लगता है कि क्वेश्चंस पीएम से उठकर आए हैं एंड हम इनिशियल नेम्स देखते हैं या फिर इनिशियल लैंग्वेज देखते हैं जो शायद हमें जो पीएम से रिजेंबल कर रही होती है या स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से रिजेंबल कर रही होती है, एंड वी स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन विदाउट इवन रीडिंग द रिक्वायरमेंट। इट इट माइट बी पॉसिबल कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और मांगा हो और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये रियलाइज हो। तो सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। डोंट जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनिशियल लैंग्वेज और द इनिशियल नेम्स। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। द लास्ट पॉइंट इज डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। सी थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना एग्जाम्स के लिए इज ओके, बट डोंट ओवरडू इट इतना कि आप अपना पूरा पेपर ही स्पॉइल कर लो और पेपर में परफॉर्म ही ना कर पाओ। आप पेपर से पहले थोड़ा टाइम चिल करो एंड इट्स ओके यार, इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई हैव मेड अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप यू कैन चेक दैट आउट फॉर सम मोर टिप्स।
Third part of the video is regarding the material which I referred for the old course. You can probably increase it or decrease it as per your understanding. The first thing is practice manual plus study material. This is the most important thing guys, because पेपर ICI के मटेरियल से ही आना है, तो आपको ये आपको पूरा कवर करना है. इन केस आप अपने कोचिंग के मटेरियल को रेफर कर रहे हो, यू कैन मेक इट अ पॉइंट कि आप एक बार चेक कर लो कि सारे एसएम और पीएम के क्वेश्चंस आपके मटेरियल में कवर है या नहीं. व्हाट आई हैव सीन गाइस कि पीएम के तो सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं बट एसएम के क्वेश्चंस कवर नहीं होते. व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इन योर कोचिंग की बुक द पेज नंबर एंड द क्वेश्चन नंबर जो कवर नहीं है, and you can refer that question for your revision afterwards. Next thing is RTP of last 3 years. I did refer the RTP of last 3 years. I know you must be thinking ये बहुत ज़्यादा है, but guys, it was my second attempt and I just couldn't afford to do, miss anything. But yeah, again, you can increase it or decrease it as per your requirement. The third thing is mock test paper. तो मॉक टेस्ट पेपर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एफआर के अंदर एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर करके देखो. बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि वी जस्ट डोंट गेट द टाइम कि हम लिख कर कोई मॉक टेस्ट पेपर देख सके. तो भले ही लिख कर मत देखो बट एटलीस्ट देख लो. मॉक टेस्ट पेपर में ना गाइस देयर इज ओनली पीएम के क्वेश्चंस, बट कभी कभी एक दो क्वेश्चंस डिफरेंट भी होते हैं. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डाउनलोड द पेपर in your laptop, desktop or even your phone. Go through once, देखो कि कोई क्वेश्चन डिफरेंट तो नहीं है जो तुमने कवर नहीं किया. Try to solve it. If it is easy, then it's okay. If it is difficult or you're not able to solve it at once, take a printout of that question, keep it in your folder, and make it a point to revise it before your exams. This will give you a lot of mental satisfaction. इससे आपको लगेगा कि आपने मॉक टेस्ट पेपर भी कर लिया है, मॉक टेस्ट पेपर के यूनिक क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना गाइस, इवन इफ मॉक टेस्ट पेपर में सारे पीएम के क्वेश्चंस हो जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, लेकिन लास्ट तक ना आपको यही लगता रहेगा और यही टेंशन रहेगी कि मॉक टेस्ट पेपर में कोई नया क्वेश्चन तो नहीं था, बिकॉज मॉक टेस्ट पेपर तो आपने छोड़ दिया. तो ट्राई टू कवर मॉक टेस्ट पेपर लाइक दिस, अगर आपके पास टाइम नहीं है लिख कर करके देखने का. The third thing is I refer DS Rawat sir ki book for accounting standards. See, this is completely and completely optional. Uh, I was not able to understand some of the concepts of some of the accounting standards. So uski theory ke liye I purchased this book. I referred this book for the 3 accounting standards. One was financial instrument. The second one was impairment, and third was employee benefit wala, that AS15 wala. I just purchased this book only for the theory because मुझे कुछ concepts cover नहीं समझ नहीं आ रहे थे. For the questions I only referred PM के questions and study material के question. This is completely optional guys. This book is completely optional. I have given my paper under old scheme, तो मुझे न्यू कोर्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है. So I have asked my friends जिन्होंने न्यू कोर्स के अंडर पेपर दिए हैं, and I have listed down the material which they referred for clearing their exams. So the first one is study material. This is the most important thing guys. वैसे भी न्यू कोर्स में पीएम तो है नहीं, तो स्टडी मटेरियल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो आप स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस देख के जाओ. नेक्स्ट इज आरटीपी. आरटीपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी भी आरटीपी आई है न्यू कोर्स के अंडर, आप उन सबके क्वेश्चंस देख कर जाओ. नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट पेपर. मॉक टेस्ट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको अपना अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट पेपर तो देख के जाना ही जाना है. I have spoken a lot about mock test paper in the previous part of this video. I'll provide the time somewhere here. You can directly jump onto that part of the video and can see about it. Next is analyzer. My friend made this analyzer for her attempt, जिसमें she has written down all the index and the chapters जिससे previous attempt के अंदर new course के questions आए हैं. इसमें you can clearly see कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन. एंड गाइस, कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन तो आपके कंपल्सरी क्वेश्चन में आ रहा है, तो यू जस्ट कांट अफोर्ड टू मिस दिस चैप्टर.
नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी जब से आया है, जब से न्यू कोर्स का पेपर शुरू हुआ है, इट हैज कम एवरी टाइम. तो ये तो आपको करना ही करना है. नेक्स्ट इज इंडेक्स 115 एंड 116. 115 जब से इंसर्ट हुआ है, इट हैज कम इन एवरी अटेम्प्ट. एंड 116 इट इज न्यूली इंसर्टेड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको नवंबर 2020 के लिए करके जाओ. डोंट मिस दिस. When you start your revision, try starting your revision with these chapters because ये काफी important है and short questions आते ही आते हैं. But it's very important that you stick to your deadline. अगर आपने FR की रिविजन को 15 दिन दिए हैं, जिसमें से 3 दिन आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन को दिए, try to complete business combination in those 3 days only. If you're not able to complete it in those 3 days, leave it over there and move on to the next chapters. Because हम एक चैप्टर में या because हम एक चैप्टर में 15 दिन नहीं लगा सकते. और no matter how important the concept is, it will only give you 15 marks. तो हमारे लिए बहुत important है कि हमें और चैप्टर्स भी कवर करने हैं. इन FR अगर आपने अच्छे से सिलेबस रिवाइज नहीं किया है, तो what you can do, पेपर से कम एक हफ्ते पहले you can start revising FR so that आप सिलेबस कवर कर सको. सी FR का सिलेबस बहुत बड़ा है, एंड अगर आप पेपर के 1-2 दिन पहले सिलेबस लेके बैठोगे ना, you will not be able to clear it. In part 4 of the video, I'll show you the glimpse of my revision note, how I was able to revise the subject 3-4 times, or I should say how I was able to revise all the important adjustments. FR से पहले ना guys, आप भले ही पूरा सम रेफर मत करो या सारे सम्स रेफर मत करो, बट आप सारे सम्स की important adjustments को जरूर देख के जाओ. This video is going to be beneficial for both old course as well as new course. For old course, because I'll be showing the notes of old course only, and for new course there are chapters like business combination and consolidation where there are a lot of questions, and these questions are similar. You can eliminate these questions by following this approach. Video start करने से पहले I would like to give you a disclaimer, guys. It's not like by following this approach you'll get a short result, but obviously it's a better way to study. But if if you have a better idea in your head, or you are following a better idea, do stick to that. Don't change that. During your first revision, you need to do all the questions in writing. After the end of the first revision, you will be able to eliminate so many questions on the basis of the similarity. I was able to identify 25 unique questions out of 50 questions. So, number of questions to be referred for my second revision just reduced to half. These 25 questions can further be divided into single star mark question and double star mark question. You need to refer only these questions for your second revision. For single star mark question, you can mark the adjustment so instead of doing the whole question in writing, you can only refer the adjustment. In case you don't want to write the treatment of adjustment in your book, you can mark the treatment in the register also. In your second revision, I'll advise you to do this double star mark question in writing, because they are difficult and you were not able to do it. They are comparatively difficult. After 2-3 revision, you will reach a point where you're only referring the adjustments in the double star mark question also. So you can see, by following this approach, I was able to revise the tough chapter like amalgamation very easily.